Hi, good evening. I am Trilochan Sahu, Department Mathematics from Prayas Higher Secondary School. Welcome you all to the Concept Plus online class. Previous class we are discussing about the distance formula. In this class, we are discussing about the section formula, its derivation, midpoint formula, centroid of a triangle, and some solve example. So, what is section formula? The introduction. Let AB be a line segment joining the point A and B. Let P be a point on the line segment such that AP is to PB equal to lambda is to 1. Lambda is a constant. Then we can say that P divide AB in the ratio lambda is to 1 internally. From the diagram, A is a point, B is a point, P in between A and B, which divide AB in the ratio lambda is to 1. So in this diagram we can say that P divide AB in the ratio lambda is to 1. That is section formula. Then derivation of section formula. कैसे हम लोग डिराइव करेंगे सेक्शन फार्मूला इन ज्योमेट्री. So let us take a point A x1 y1 and a B x2 y2 in the first quadrant. So let us draw a perpendicular AM on OX and a BR on OX, CN also on OX. Let AP is a perpendicular on CR and CQ is a perpendicular on BN. So from the diagram, OM equal to x1, OR equal to x and ON equal to x2. Similarly, AM equal to y1, CR equal to y and BN equal to y2. Again, from the diagram, MR equal to x minus x1, that is also equal to AP, RN equal to x2 minus x, that is also equal to CQ, CP equal to y minus y1 and BQ equal to y2 minus y. So the triangle ACP and BQC are similar. The two triangles are similar triangle. Hence, from geometry, if two triangles are similar, then their sides are proportional to each other. So from that, we can say AC by CB equal to AP by CQ equal to CP by BQ. So AC equal to M and CB equal to N. Hence M by N equal to x minus x1 by x2 minus x, that is equal to y minus y1 by y2 minus y. So let us take M by N equal to x minus x1 by x2 minus x. So ये दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा m इंटू x2 माइनस एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस x1. From that mx2 minus mx इक्वल टू nx माइनस nx1. अगर nx1 को लेफ्ट साइड को ले आएंगे, mx को राइट साइड को ले जाएंगे तो mx2 प्लस nx1 इक्वल टू mx प्लस nx. That means x taken common, m plus n equal to mx2 plus nx1. Hence x equal to mx2 plus nx1 by m plus n. Similarly, if you take m by n equal to y minus y1 by y2 minus y, cross multiply, we get m into y2 minus y equal to n into y minus y1. That means my2 minus my equal to ny minus ny1. So that implies my2 plus ny1 equal to my plus ny. Similarly, y taken common, m plus n equal to my2 plus ny1. Hence y equal to my2 plus ny1 by m plus n. Hence coordinate of C xy is mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे याद रखना है डायग्राम में समझाए. हम एक लाइन सेगमेंट ले लीजिए. A इक्वल टू x1 y1, B इक्वल टू x2 y2, C is a point in between AB, so that is xy. So x equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n. Similarly, y equal to m into y2 plus n into y1 by m plus n. So if C is a point which divide AB externally in the ratio m is to n, then the formula
So that is mx2 minus nx1 by m minus n, comma my2 minus ny1 by m minus n. अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है देन तो नेगेटिव हो जाता है बीच में. देन मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट. Let's see xy be the midpoint of the line segment joining a x1 y1 and b x2 y2. Then by putting m equal to n in that formula, अगर m के जगह n पुटिंग कर दे वो फॉर्मूला में, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला में, तो हो जाएगा x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एम हो जाएगा n के जगह. सिमिलरली y एम वाई टू प्लस एम वाई वन बाय एम प्लस एम. टेकन m कॉमन, सो द फॉर्मूला बन जाएगा x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू एंड y हो जाएगा y1 प्लस वाई टू बाई टू. देन सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल. सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल. जहाँ पे मीट करता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं. तो जो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. लेट अस ABC इज ए ट्रायंगल. A हो गया x1 y1, B होता है x2 y2 एंड C होता है x3 y3. लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिड पॉइंट D होता है. सो D का कोऑर्डिनेट हो जाता है x2 प्लस x3 बाई टू कमा y2 प्लस y3 बाई टू. तो D का कोऑर्डिनेट मिल गया. लेट अस टेक AD हम नीचे एक डायग्राम है उसमें हम AD ड्रॉ किए हैं. AD A का कोऑर्डिनेट x1 y1, D का कोऑर्डिनेट हो गया x2 प्लस x3 बाई टू कमा y2 प्लस y3 बाई टू एंड G इज द पॉइंट x कमा y विच डिवाइड AD इन द रेशियो 2:1. अभी हमको A का कोऑर्डिनेट मिल गया, D का कोऑर्डिनेट मिल गया, G का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है. रेशियो हमको पता है 2:1. हेंस अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, G का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई टू प्लस 1 इंटू x1 बाय 2 प्लस 1. सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई टू प्लस 1 इंटू y1 बाय 2 प्लस 1. 2 कैंसिल होके अभी G का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री. तो हेंस हमारा सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तीनों का x कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 3. सिमिलरली तीनों का y कोऑर्डिनेट को ऐड करके बाई 3. देन सम सॉल्व एग्जांपल रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला. फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ A -2 1 एंड B 1 4 इन द रेशियो 2:1. एक डायग्राम बना दीजिए. A की जगह -2 1 एंड B की जगह 1 4. रेशियो इज 2:1. इंटरनल डिवीजन. यहाँ पे x1 हो गया -2, y1 हो गया 1, x2 हो गया 1, y2 हो गया 4, m हो गया 2, n हो गया 1. अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला Pxy दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 1 9/3 दैट इज 3. Hence the coordinate of P is 0,3. Another example number 2. Let P6, -3 be middle point of the line segment AB, where A has the coordinate -2 0. Find the coordinate of B. Then एक डायग्राम बना दीजिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम कंपलसरी. डायग्राम बना के करने से पूरा समझ में आ जाता है कोऑर्डिनेट. A हो गया -2 0, B हो गया, लेट अस B का कोऑर्डिनेट निकालना है. लेट अस दैट इज x, y. P is a point which is the midpoint of AB, that is 6, -3. Hence, according to the formula, -2 plus x by 2 that is equal to 6 और 0 plus y by 2 that is equal to -3. ये दोनों को अगर सॉल्व कर देंगे तो बन जाएगा -2 plus x equal to 12, तो x हो गया 14 एंड -6 equal to y plus 0, तो y हो गया -6. Hence, B का कोऑर्डिनेट आ गया 14, -6. Next example, two vertices of a triangle are 1, 4 and 3, 1. If the centroid of the triangle is origin, मतलब 0, 0, then find the third vertex. Similarly, draw the diagram of a triangle ABC where A equal to 1, 4, B equal to 3, 1. Let us C equal to x, y and the centroid of the triangle is origin, मतलब 0, 0. मतलब centroid दिया गया है. centroid हमको दिया है
ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो यूजिंग द फॉर्मूला 0 इक्वल टू, मतलब x का कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड का x का कोऑर्डिनेट हो गया 0, दैट इज इक्वल टू 1 + 3 + x बाई 3। तो इसको सॉल्व करने से x हो गया -4। सिमिलरली y का कोऑर्डिनेट भी 0 है, 0 इक्वल टू 4 + 1 + y बाई 3, दैट मीन्स y हो गया -5। हेंस c -4 -5 be the third vertex of the triangle ABC. Next example, ABCD is a parallelogram whose vertices A, B and C have the coordinate -3, 2, 1, 5 and 2, -4 respectively. Find the coordinate of the fourth vertex. So parallelogram का एक प्रॉपर्टी है, दोनों डायगोनल अपने खुद बाइसेक्ट करता है, दोनों को बाइसेक्ट करता है। इसलिए हम एक डायग्राम बना है ABCD का। A हो गया -3, 2, B हो गया 1, 5, C हो गया 2, -4, लेटस D हो गया x, y। P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, मतलब AC एंड BD दोनों इंटरसेक्ट करता है P में। इससे पता चलता है AP इक्वल टू PC एंड PD इक्वल टू PB, मतलब P दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। इसलिए ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है, स्कूल में था। तो दोनों का हम लोग मिड पॉइंट निकाल देंगे। सो बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला AC का मिड पॉइंट क्या होगा, -3 + 2 बाई 2, 2 - 4 बाई 2। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD क्या होगा, x + 1 बाई 2 एंड y + 5 बाई 2। फॉर ज्योमेट्री दोनों अगर इक्वल होगा, हेंस -3 + 2 बाई 2 इक्वल टू x + 1 बाई 2, 2 कैंसिल, हेंस सॉल्व करके x आ गया -2। सिमिलरली y + 5 बाई 2 इक्वल टू 2 - 4 बाई 2, 2 कैंसिल होके सॉल्व करके y हो गया -7। हेंस D -2 -7 is the fourth vertex. Then another example number 5. The line segment joining the point A 2 - 3 and B 3 4 chord the x-axis at P. Find the ratio in which P divide the line segment AB. So एक हम डायग्राम ड्रॉ किए, 3, 4 in the first quadrant and 2, -3 in the fourth quadrant. From this diagram A हो गया 2, -3, B हो गया 3, 4 और AB को x एक्सिस डिवाइड करता है इन द रेशियो m/n। तो इसलिए A हो गया 2, -3 और B हो गया 3, 4 और रेशियो हो गया m/n। फ्रॉम द डेफिनेशन यहाँ पे x एक्सिस अगर डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसलिए x हो गया m/3 + n/2 बाय m+n। सिमिलरली 0 हो गया m/4 + n/-3 बाय m+n। टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो 0 इक्वल टू 4m - 3n बाय m+n। तो दैट हेंस 4m - 3n इक्वल टू 0, 4m इक्वल टू 3n, n m का नीचे आ जाएगा, 4 3 का नीचे आ जाएगा, m/n इक्वल टू 3/4। हेंस द रेशियो इज 3:4 इंटरनल डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। अगर नेगेटिव साइन होता तो एक्सटर्नल डिवीजन होता। इसका एक शॉर्टकट हम बनाए, इफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस देन द रेशियो इज, शॉर्टकट में नेगेटिव ऑफ y1/y2। If it is divided by y-axis, then the ratio is negative of x1/x2. इसी शॉर्टकट में और एक एग्जाम्पल हम किए हैं, 6th example number 6. Find the ratio in which the line segment joining A -5 2 and B 2 3 is divided by y-axis. y-axis में कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? Similarly यहाँ पे A -5 2 that is in second quadrant and 2 3 that is in the first quadrant, the ratio is m/n. From the diagram, here x1 equal to -5, y1 equal to 2, x2 equal to 2, y2 equal to 3. तो फ्रॉम द शॉर्टकट फॉर्मूला एबव, अगर y एक्सिस के साथ डिवाइड करता है, y एक्सिस से डिवाइड करता है, देन द रेशियो m/n होता है -x1/x2, दैट इज -x1 हो गया -5, y1 हो x2 हो गया 2, हेंस -5/2, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, सो m/n हो गया 5:2 इंटरनली। एक्सटर्नली कब होता है? जब अगर m/n नेगेटिव ऑफ 5:2 होता है तभी ये होता है एक्सटर्नली। सो आज का क्लास अच्छा लगा होगा आप लोग को।
तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला का कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम असाइनमेंट